یہ عشق و مستی میں ڈوبے ہوئے لمحات، میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے اس دیار غیر میں آج یہ جتنے آئے ہیں میرے نبی کے صدقے انشاءاللہ ان کے اور ہمارے سینوں میں اپنے نور کے جلوے عام فرمائے، کہ آج ہم اس دیار غیر میں حضرت صاحب کی زیر سرپرستی ولی دربار عالیہ مولا شیخ پیر جہانزیب بادشاہ صاحب اور مرد قلندر پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب، آج ہم تینوں بھائی آپ کے سامنے ہیں اور ہم کی اور آپ کی ملاقات کا ایک ہی وجہ ہے، وہ اللہ کی رضا ہے اور مصطفیٰ کریم کی وفا ہے۔ جہاں رب کی رضا بھی مل جائے اور حضور آقا مدنی تاجدار کی وفا بھی مل جائے، میرا ایمان یہ تقاضا کرتا ہے وہ نمے سراپا رحمتوں والے بن جائے۔ اور پھر حضور آقا مدنی کی آمد میں جس طرح جو بھی آیا، جس انداز میں آیا، اس نے اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہوئے حضور کی عظمتوں کے حوالے سے، حضور کی شان کے حوالے سے، حضور کے مقام کے حوالے سے، حضور کی عظمتوں کی برکتوں کے حوالے سے جو بھی بات کی ہے، میرا ایمان ہے ہر لفظ پہ رب کائنات اپنی رحمتوں کا نظور فرمایا۔ اور یہ وہ بابرکت دمے ہیں میرے دوستوں، یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس غموں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ تو سنتے ہیں، میرا ایمان یہ کہتا ہے رب کے فرشتے بھی اتر کر میرے آقا کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ بابرکت ذکر ہے، اس آقا کی بارگاہ میں محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے وقت کی کمی ہے، میں 2 یا 3 ریفرنس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم میلاد النبی مناتے ہیں، علامہ مفتی صاحب نے فرمایا، انہوں نے کتنی خوبصورت احادیث کے حوالے سے فرمایا ہے، یہ سیلیبریشن جو ہم کرتے ہیں، حضور کی آمد میں خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، یہی تو ایمان کا تقاضا ہے، یہی تو محبتوں کا تقاضا ہے۔ اور حدیث قدسی ہے کہ رب کائنات جو احد ہے، احد وہ ہوتا ہے جسے دیکھو تو دیکھا نہیں جاتا، جسے سوچو تو سوچا نہیں جاتا، جو سماتا نہیں ہے، وہ کائنات کے ہر ذرے کا خالق و مالک ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو آسمان اور زمینوں کا نور ہے۔ وہ رب کہتا ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہے یہ میری رضا چاہتی ہے، میری مرضی چاہتی ہے، میری رضا چاہتی ہے۔ اے مصطفیٰ میں تیری رضا چاہتا ہوں، آپ ہے میرے آقا کا، اس لیے ذکر مصطفیٰ جو ہے وہ ذکر خدا ہوتا ہے، اور وہی کرتا ہے جس کے دل میں محبت رسول ہوتی ہے۔ حضور کی محبتوں کو اپنا لو، حضور کی آمد کا تذکرہ سیدنا عبداللہ ابن عباس سے سنو کہ جب آپ غزوہ بدر میں گرفتار ہو کے آتے ہیں تو جب مجھ سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو میں تو اس دن سے آپ کو نبی ماننے لگ پڑا تھا، اس دن سے مانا تھا جب آپ کنگوڑے میں تھے اور بن ہلائے کنگوڑا ہل رہا تھا، اور جہاں پہ نور والی انگلی جاتی تھی چاند ادھر سمجھ تھا۔ میں تو اس وقت بھی مانتا تھا، لیکن میرے آقا نے کہا میرے چچا تو اس وقت بھی مانتا ہے، لیکن اس سے پہلے کی بات سنا دیتا ہوں، اس سے آگے کی بھی بات سن لو کہ پہلا آسمان ہے، دوسرا آسمان ہے، تیسرا اور 7واں آسمان، اس کے پیچھے عرش ہے اور لوح محفوظ ہے، اس پہ جو قلم چلتی تھی، مجھے قسم ہے اپنے رب کی کہ جب میں اپنی ماں کے مبارک پیٹ میں تھا اس قلم کی آواز بھی سنتا تھا۔ عظمت ہے میرے آقا کی، یہ وہ مقام ہے میرے آقا کا۔ اور جب اس کائنات عرضی میں آتے ہیں، بشری لباس پہن کر آتے ہیں، اپنے نور کے جلووں سے کائنات کو کی روشنی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور حضور کا یہ بھی ابن عساکر نے اور جو ہے اپنے ابن عساکر نے یہ حوالہ دیا ہے کہ جب سرکار کی آمد ہوتی ہے اور اس کائنات میں آتے ہیں تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اس مخلوق کی بخشش کے لیے میرا نبی سجدے میں چلا جاتا ہے۔ اور مفتی صاحب نے جب فرمایا کہ خطرہ بھی تھا، پاک بھی تھے، صاف بھی تھے، اور پھر ایسا نور، آپ کی والدہ کہتی ہے کہ ایسا نور نکلا جس نور سے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ساری کائنات کو نور ہی نور کر دیا۔ یہ وہ آقا ہے۔ اور دوسری حدیث سنو کہ رب نے کیا کہہ دیا، میرے محبوب نبی نے اپنی نور والی زبان سے کہہ دیا، رب کہتا ہے اے میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہو اور تیرا ذکر نہ ہو، میں نے اس کے حصے میں جو ذکر نہ کرے اس کے حصے میں جنت کا ٹکڑا رکھا ہی نہیں ہے۔ اگر جنت بھی ملتی ہے تو سرکار کے صدقے سے، رب کے جلوے ملتے ہیں تو سرکار کے صدقے سے، اپنی اندر کی خود آگاہی ہوتی ہے تو سرکار کے صدقے سے۔ جو کچھ مانگو گے کملی والا عطا کرتا ہے، اور رب عطا کرتا ہے کملی والے کے صدقے سے عطا کرتا ہے۔ یہ وہ وسیلہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، اور اس ایمان پہ ہم نے کامل رہنا ہے۔ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ ہمارا ایمان
We don't want to किसी एक को भी हमें we don't want to let anybody to disrespect our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It is our belief to perform the hadith, the prayer of Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you perform the Prophet's way, Allah subhanahu wa ta'ala will bless you and give you the blessing whatever you want. ये हमारा ईमान है, ये ईमान होगा क्योंकि रब ने तो ऐलान कर दिया है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तस्दीक करता है इस दुनिया में भी उसे लानत है और आखिरत में भी लानत होगा। और फिर जब जिनका ये ईमान होगा हमें जो कुछ मिलता है कमली वाले के सदके से। और ये सेलिब्रेशन ईद मिलादुन नबी का ये जश्न, ये देखो एक ही हवाला, ये कैसा हम क्यों मनाते हैं, ये तो है ही बरहा, ये ईमान ईमान है और ईमान उसी का कामल होता है जो आने की सरकार की आमद में खुशियां मनाता है। और ये 5 वक्त की जो नमाजें तुम पढ़ते हो ये भी किसी की सेलिब्रेशन है, ये ऐसे नहीं, इसका भी पीछे देखो तो बैकग्राउंड, ये भी सेलिब्रेशन है। और फजर की नमाज जो पढ़ते हो ये क्या है इनाम, ये किसका इनाम है, ये किसकी बरकतें हैं। ये नमाज फजर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, कि आपने जब तौबा कबूल हुई थी तो आपने सजदा रेज़ी की थी और उसको रब ने 2 नफर पढ़े थे, रब ने अहले ईमान के लिए मेरे नबी के उम्मतियों के लिए फर्ज नमाज पढ़ी। और फिर नमाज़े अज़्ज़ोर जो है इसके पीछे भी बैकग्राउंड है कि सैयदना इसहाक अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की थी कि मुझे बेटा अता कर दिया जाए। सैयदना इब्राहीम की आमद होती है, 4 नफर शुक्राने के पढ़ते हैं, खुशियां मनाते हैं, उनकी आमद में रब ने उस खुशियों को पसंद करके अहले ईमान के लिए जोर की नमाज के फर्ज बना दिया। ये कितना बड़ा इनाम, नमाज असर अदा करते हो, इसके भी पीछे एक बैकग्राउंड है, इसकी भी सेलिब्रेशन है, ये नबियों की सेलिब्रेशन है। तो द लीडर ऑफ द प्रॉफिट है, जो नबियों का सरदार है, जब उसकी आमद होती है तो आशिक उठते भी हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, बैठते भी हैं तो जिक्र मुस्तफा करते हैं, खलवत में हो तो जिक्र मुस्तफा, जलवत में हो तो जिक्र मुस्तफा, जहां जहां गए हुजूर के जिक्र में मस्त हो जाते हैं। ये तो आशिकों की पहचान है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होते हैं, जब जिंदा हुए तो अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी करती, 4 नफर पड़े उन्होंने शुक्राने के, रब ने उस अदा को पसंद करके लिए मेरे नबी के उम्मतियों के लिए फर्ज नमाज को कायम किया। और फिर आगे थे वो सैयदना याकूब या सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम या सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम। आप बड़ी बीमारी से सेहतयाब होते हैं और सेहतयाब होते हैं तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते हैं। क्या करते हैं, 4 नफर पढ़ते हैं, लेकिन 3 पढ़ने के बाद सकत ना रही, अब बैठ जाते हैं। रब ने इस अदा को पसंद करके 3 फर्ज हमारे लिए कायम करवा दिए। ये सेलिब्रेशन हो रही है। और फिर इशा की नमाज होती है और इशा की नमाज में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं, जो मछली के पेट में रह के रब के जिक्र करते रहे, जब आए बाहर तो फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो गए और शुक्राने के 4 नफल पढ़े। रब ने उस अदा को पसंद करके हमारे लिए इशा की नमाज के 4 फर्ज कायम किए। ये सारी सेलिब्रेशन है। हज को देख ले, वो भी सेलिब्रेशन है, वो भी नबियों को, मुख्तलिफ नबियों की जो है वो जिंदगी का हिस्सा या हमारे लिए हज बना दिया गया। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज के लिए जाते हैं, 2 कपड़े पहने, उन कपड़ों को आप कितने आला आला कपड़े पहनते हो, क्या लिबास पहनते हो, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जाते हो सारे लिबासों को छोड़ के 2 कपड़े पहन लेते हो। और वो कौन से, वो सैयदना इब्राहीम ने पहने। उस अदा को रब ने पसंद करके हज का हिस्सा बना दिया है। ये तलबिया जो कहते हो लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, ये नारे लगाते हो ना, ये किसने नारा लगाया है, ये सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने लगाया है। आपने काबा की तामीर कर ली, अल्लाह की बारगाह में दुआ की और खड़े हो गए और पुकारा, अहले मक्का को पुकारा, जो मक्का में बसने वाले हैं उन्हें पुकारा कि अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ। और तारीख में लिखा है जब आप दोनों ने, बाप और बेटे ने, दोनों नबी, उन्होंने पुकारा तो मक्के में बसने वाले जितने घर हैं सारों ने लब्बैक कह दिया। और फिर आगे लिखा गया कि जो माओं के पेट में थे बच्चे उन्होंने भी लब्बैक कहा, जो आदमी अरबाब में थे उन्होंने भी लब्बैक कह दिया। ये नबी की पुकार में पुकारा जाता है और हज को हमने हिस्सा बना लिया है। ये आगे लंबी बात है, सिर्फ एक हवाला और ले देना चाहता हूँ। ये सेलिब्रेशन क्यों करते हो, अरफात के मकाम पे जाते हो, अरफात के मकाम पे जाते हो, वकूफुल अरफा जो है वही तो हज का तकमील होने का हिस्सा है। जो वहां क़याम नहीं करता ज़वाल से लेकर मगरब तक उसका हज नहीं होता, हज कबूल नहीं होता। इसके पीछे भी बैकग्राउंड है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा की वहां पे मुलाकात होती है। अरफात का मैना ही पहचान है, वहां पे पहचान होती है
उस अदा को रब ने पसंद करके हज का हिस्सा बना दिया। हर साल सेलिब्रेशन करते हो। जब नबियों की आमद में रब ने हमारे लिए ये खुशियां मनाने का पैगाम कभी नमाजों की शक्ल में, कभी हज की शक्ल में, कभी मोहब्बतों की शक्ल में दिया है, तो फिर जो नबियों का सरदार है उसकी आमद होती है तो ईमान वाले जो हैं अपने घरों को भी सजाते हैं, अपने महलों को भी सजाते हैं और अपने दिलों को भी अल्लाह के जिक्र से और सेलिब्रेशन का एक हदीस और आपके सामने रखता हूं। हज़रत सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत है और हदीस से पाक सुनो, दिल में मजा आ जाएगा। मिलाद मनाने वालों, कास्मिया ज़ैदिया सेंटर ओल्डन में बैठने वालों, तुम बेमकसद नहीं आए हो, बामकसद आए हो, रब के रज़ा के लिए आए हो, मेरे महबूब के जिक्र में आए हो। और जो मेरे महबूब के जिक्र में बैठता है, रब ने कहा है, सारे नबियों को कहा मेरी मर्जी करो, मेरा जिक्र करो। और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए गए तो रब ने पूछा मूसा दौड़ क्यों रहा है? मैं रब्बे कायनात तुझे राजी करने के लिए जा रहा हूं, मैं तुझे राजी, सब नबियों ने रब को राजी किया है, रब होकर मेरे मुस्तफा को राजी कर रहा है। नाम है मेरे आका का, ये अजमत है मेरे आका की। और फिर देखो हदीस पाक में मेरा विजदान ये कहता है कि सैयदना अबू बकर भी बैठा होगा, जो लक्षपतियों का सरदार है, जिसकी अजमत को मैं सलाम पेश करता हूँ, जिसके ईमान को सलाम पेश करता हूँ। आपका क्या ईमान है कि नबी रहमत ने फरमा दिया मस्जिद की तरफ जितनी भी खिड़कियां हैं बंद कर दो, अबू बकर की खिड़की को खुले रखना। अबू बकर की वो अजमत है। सैयद अबू बकर भी बैठे होंगे, उमर फारूक भी बैठे होंगे, जिनके लिए मेरे आका ने अपने नूर वाले हाथों को उठाया है, इस उमर के लिए हाथों को उठाया है। सैयद उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन भी बैठे हैं, अली शेर खुदा भी बैठे हैं, अबू हुरैरा भी बैठे हैं, अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी बैठे हैं, सैयद खुदरी भी बैठे हैं। और ये सारे क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह के हबीब का शुक्र अदा कर रहे हैं, जिसके सदके से ये जिक्र मिला है, जिसके सदके से तारीकियों में मिटने वाली रोशनी मिल गई है। उन दोनों हस्तियों का जिक्र हो रहा है। इन द मीन टाइम प्रॉफेट अप्रोच्ड देम, हुजूर आ जाते हैं, आ जाते हैं और पूछते हैं ऐ मेरे गुलामों क्या कर रहे हो? या रसूलल्लाह हम दो काम कर रहे हैं, दो ही काम है, एक अल्लाह का जिक्र करते हैं, एक अल्लाह के हबीब का जिक्र करते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? ये तो दो काम है। 4 घंटे से पीर साहब की सदारत में बैठ के क्या कर रहे हो? रब का जिक्र, रब के हबीब का जिक्र और हबीब के गुलामों का जिक्र, ये तो ही काम है। तो मेरे आका ने कहा कसम उठाओ, कहा कसम उठाओ, यही काम कर रहे हो। या रसूलल्लाह हम कसम उठा के कहते हैं यही काम कर रहे हैं। मेरे आका नबी तो होता ही वो है जो दिलों के राजों को जानता है, दिलों के राजों को जानता है। ये तो नबी की तारीफ है। तो नबियों का सरदार वो तो जमीन से लेके अर्श तक हर चीज से बाखबर है। हजूर ने कहा मुझे मालूम है तुम सिर्फ यही काम कर रहे हो, लेकिन जब मैं तुम्हारी तरफ आया तो मतवज्जो हुआ तो मेरे रब ने इस अदा को पसंद कर लिया, रब ने इस अदा को पसंद कर लिया और कहा कि मेरे महबूब को जिब्रील को भेजा जाओ, मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो, मेरे महबूब को ये पैगाम सुना दो। क्या पैगाम लेके आया जिब्रील? जिब्रील पैगाम लेके आया कि ये जो बंदे तेरे मेरा और तेरा जिक्र कर रहे हैं, मेरे और तेरे जिक्र में मस्त हैं, रब ने इस अदा को पसंद कर लिया है और इन पे फख्र करता है, उन्हें बख्शिश अता फरमा। आज हमारे लिए भी बख्शिश होगी ना, हमारे लिए भी बख्शिश होगी। मेरा ईमान है ख्वाजा कासिम की नजर करम होगी, शायर बगदाद की नजर करम होगी, औलियाए कामिलीन की नजर करम होगी। ये वो पाक हस्तियां हैं जिन्होंने अपनी हस्ती को मिटाकर अपने दिल में बसाया तो मोहब्बत रसूल को, हजूर की मोहब्बत को कामल कर लो, हजूर से इश्क करो, क्योंकि रब कायनात रब होकर मेरे रसूल से इश्क करता है, रब होकर इश्क करता है। इसलिए तो सहाबा ने इश्क किया है। आज कुरान को उठा के देखो तो वहां भी तस्करे होते हैं, सहाबा के तस्करे कुरान में भी होते हैं। और ये इश्क की बात है। एक हवाला आपके जहनों में डालने के लिए, जो अपने इस मिलाद में आए हो, वालिदैन की जो इज्जत करता है उसे क्या मकाम मिलता है, जो वालिदा की खिदमत करता है उसे क्या मकाम मिलता है। और सैयदना वैसे करनी करम का रहने वाला, छोटा कद काला रंग है जी, शक्ल नहीं बस के दाग है जिस्म पे, लेकिन इश्क में कामल हुआ। तो नबी को मालूम नहीं, हजूर ने तो पहले कह दिया था मेरा गुलाम करम में बैठा मेरे इश्क में मचल रहा है। और कहा ऐ उमर और अली तुम जाके
اسے یہ جبہ بھی دینا، اور سب سے بڑی بات یہ کہی کہ میری قوم، میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا۔ نبی محتاج نہیں ہوتا،